اور آج اب میں چلتا ہوں اپنے اصلی موضوع کی طرف. اگر فضیلت ہی بیان کرتا جاؤں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن فضیلت کم نہیں ہوگی. بولو ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ بولو ہم کون ہیں؟ بولو یزیدی تو نہیں ہے کوئی؟ اچھا کون کون حسینی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اس سے. بولو یا حسین، پکے سچے حسینی ہو رکھ لو. میرے بھائیوں میں اتنا بتا دوں کہ حسینیوں کا کیا کام ہے اور یزیدیوں کا کیا کام ہے. حسینیوں کا کیا طریقہ اور یزیدیوں کا کیا طریقہ بتا دوں. پہلے میں امام حسین پاک کی طرف کو چلتا ہوں اور اپنے معاشرے کی طرف کو دیکھو، اپنے ماحول کی طرف کو دیکھو. جیسے ہی محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے ویسے ہی نوجوان کے ہاتھ میں ڈھول کا ڈنڈا آ جاتا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند دکھائی دیا بڑے بڑے ڈھول نکل آئے، پوری رات ڈھول بجا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں گھما رہے ہیں، تیرے میرے بلب توڑ رہے ہیں، آتش بازیاں چھوڑ رہے ہیں. کہیں تو اتنے گندے کام تھیلیوں میں گوبر بھر کے تیرے میرے مکان پہ پھینکے جا رہے ہیں. کیا یہی حسینیوں کے کام ہے؟ رات اور رات ڈھول بجا رہے ہیں. مسلمانوں میں تمہیں حسینیوں کا رستہ دکھا دوں اور تھوڑا یزیدیوں کا رستہ دیکھتے چلو. امام حسین پاک ہے، رات جب شہادت کی رات ہے، یعنی صبح کو شہید ہونے والے شہید شہادت کا دن ہے. اس رات کی بات سنو. امام حسین پاک نے قرآن پاک اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیٹی کو بلایا جس کا نام حضرت سکینہ ہے، اور بلانے کے بعد کہا بیٹی ذرا قرآن کی تلاوت کرو. بیٹی میں تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا قرآن پاک پڑھ لو. اللہ اللہ، امام حسین قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، بیٹی قرآن پاک پڑھ رہی ہے. اب پڑھتے پڑھتے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سکینہ کے ہاتھ پہ گرا. جیسے ہی گرنا تھا سکینہ نے اوپر کو چہرہ اٹھا کر کے دیکھا. جب دیکھا تو حسین کی آنکھوں میں آنسو. کہا اے ابا جان، آپ نے بھیا قاسم کو قرآن پڑھایا، آنکھوں میں آنسو نہیں. آپ نے انو محمد کو قرآن پڑھایا، آپ نہیں روئے، لیکن اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ اتنا بتا دو. کہا بیٹی کل کو تمہارے باپ کی قربانی کا دن ہے، کل کو تمہارے باپ کی شہادت کا دن ہے، کل کو تمہارے باپ کا امتحان ہوگا. اتنا کہنا تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے. اب حضرت زینب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت زینب کے جب پاس گئے حضرت زینب چپٹ جاتی ہے، اور چپٹنے کے بعد ایک دوسرے سے گلنے کے بعد دونوں رونے لگتے ہیں. حضرت امام حسین نے اپنی بہن زینب کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنی بہن کی کلائیوں کو چومنے لگے. اللہ اللہ، ادھر امام حسین کو دیکھو. حضرت امام زینب ہے، اپنے بھائی کی پیشانی کو نہیں چوم رہی ہے، اپنے بھائی کے ہاتھوں کو نہیں چوم رہی ہے، بلکہ آنکھوں میں آنسو ہے، اور اپنے بھائی کی زلفیں سنبھال رہی ہے، اپنے بھائی کے بال سنبھال رہی ہے، حلقوم کو چوم رہی ہے. امام حسین بولے اے بہن بتا، آج تک تو نے میرے بال نہیں اس طریقے سے سنبھالے. تو میرے ہاتھ چومتی تھی، تو میری پیشانی چومتی تھی، آج تو نے میرے بال کیوں چومے؟ آج تو نے میرے بال کیوں سنبھالے؟ کہا بھیا تم بھی تو میری پیشانی چومتے تھے، آج تم نے میری کلائی کیوں چومی؟ اتنا بتا دو. امام حسین بولے بہن کیا بتاؤں، میرے نانا نے مجھے بتایا تھا، میرے نانا نے بتایا تھا بیٹے حسین کربلا کے میدان میں جب تیرا امتحان ہوگا تیری بہن ہوگی، اس کی ہاتھوں میں چوڑیوں کی جگہ ظالم یزیدی ہتھکڑی پہنا دیں گے. اے بہن مجھے وہ ہتھکڑی یاد آ گئی، اس لیے میں تیری کلائی چوم رہی ہوں، میں چوم رہا ہوں. حضرت زینب بولی بھیا حسین سنو، ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے، میری امی جان فاطمہ الزہرا آپ کے بال کاڑ رہی تھی اور کاڑتے کاڑتے رو رہی تھی. اتنا روئی
ना रोई के सिसकियां बंधने लगती है। अल्लाह अल्लाह, इतने में मैं आ गई। मैंने कहा अम्मी जान क्या कोई तकलीफ है, क्या कोई परेशानी है, क्या कहीं पे दर्द है, आप क्यों रो रही हो माँ मुझे बताओ। माँ ने छुपा लिया, मेरे मुंह पे हाथ रख लिया, मेरा बेटा हुसैन उठ ना जाए। कहा माँ मुझे बताओ। माँ पकड़ के मुझे एक तरफ को ले गई। ले जाने के बाद कहा था, कहा ज़ैनब सुन ले, मेरे बेटे का इम्तिहान होगा करबला के मैदान में। उस वक्त तुम्हारी माँ फातिमा नहीं होगी, ऐ ज़ैनब तुम होगी। जब मेरे बेटे के अलकूम पर छुरी चलेगी, नेज़ा और मेरे बेटे के अलकूम पर जब तलवार चलेगी, तो मेरे बेटे की जुल्फे करबला के मैदान में सदूल में सज जाएंगी। उस वक्त में ज़ैनब तुम उन बालों को संवार देना, मेरा बेटा करबला के मैदान में जाए, मेरे बेटे के बालों को संवार देना। मुझे आज वो अम्मी की बात याद आ रही थी, इसलिए मैं इन्हीं बालों को चूम रही हूँ, आपके हलकूम को चूम रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, रात भर देखें। अब ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाते हैं। ज़ैनुल आबिदीन से कहा बेटे तुम्हें बाकी रहना है, तुम्हें करबला के मैदान में नहीं जाना, इसलिए तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, सैयदों की नस्ल चलेगी। कहा कि अब्बा जान ठीक है जैसे आप फरमाते हैं। शहरबानों के पास गए, उम्मे रुबाब के पास गए। कहा अगर तुमसे मुझे कोई परेशानी, अगर तुम्हें कोई मुझसे कोई परेशानी, कोई बात हो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये हुसैन की बीवियां थी। जब उन बीवियों ने इतना सुना तो वो बीवियां बोली हुसैन हमें इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हश्र का मैदान होगा, जब हम चलेंगे फरिश्तों से कहा जाएगा अरे अपने चेहरे घुमा लो, फातिमा की दुल्हन आ रही है, अपने चेहरे घुमा लो, नबी के नवासे की दुल्हन आ रही है। दुनिया में कहेगी अरे हम शहीद की बीवी है, हुसैन हमें जुदा मत करना। कदमों पे गिर गई, कहा हुसैन जाओ हमें पाक दामन पर। इमाम ये रात भर इमाम हुसैन कर रहे हैं और तुम रात भर ढोल बजा रहे हो, रात भर नक्कारे बजा रहे हो, रात भर बाई को घुमा रहे हो। ये हुसैनियों का तरीका नहीं है। और आगे चलो मैं बताता हूँ। अब सुबह हो गई, इमाम हुसैन को तैयार कर दिया जाता है। शहादत नहीं सुना रहा हूँ, शहादत सुनाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार है, घोड़े पर सवार है। बहन आंखों में आंसू जब्त करे हुए है, पहाड़ बनी पड़ी है सब्र का। ज़ैनब कह रही जा भाई, आज नाना के दीन को जिंदा करना है, नाना का सर झुकने नहीं देना है, इस्लाम को बुलंद करना है। जाओ फी अमानिल्लाह, अल्लाहु हाफिजुल, जा इज़हब इला मैदानी करबला, जा भाई चला जा। अल्लाह अल्लाह, बीवियां भी दरवाजे पर खड़ी है, खेमों के दरवाजे पर खड़ी है। इधर जो थे इमाम हुसैन घोड़े पर बैठे हैं, घोड़े की रस्सियां खींच रहे हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, पसीने पसीने हैं। हुसैन एड़ मार रहे हैं लेकिन घोड़ा पसीने पसीने आगे नहीं बढ़ता। हुसैन बोले ऐ घोड़े क्या तू भी गद्दार हो गया है, या तू भी यजीदी हो गया है, या तू भी साथ छोड़ रहा है। हुसैन ने जब ये कहा तो वो घोड़ा बोला हुसैन आपके नाम पे मेरी जान कुर्बान, मैं यजीदी नहीं हूँ हुसैनी हूँ। अरे मैं कैसे जाऊं, आपकी बेटी सकीना मेरे सामने पांव पकड़े खड़ी है। जब नीचे को देखा हुसैन की बेटी सकीना घोड़े का पांव पकड़े खड़ी थी। घोड़ा इसलिए नहीं बढ़ा, अगर मैं बढ़ूं सकीना नीचे आ जाएगी, सकीना गिर जाएगी। जानवरों की मोहब्बत देखो, उन जानवरों की मोहब्बत देखो, उन सैयदजादियों को गिराना पसंद नहीं कर रहा है, और इन यजीदियों को देखो उन पे तीर चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन नीचे आ जाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी क्या बात है। कहा अब्बा जान मुझसे नहीं मिलोगे। कहा बेटी मिलूंगा। बेटी बोली अब्बा जान जाओ, इन्नल्लाह मा'as साबिरीन, जाओ मैं कहूंगी शहीद की बेटी हूँ। अल्लाह
अल्लाह, इमाम हुसैन पाक चले गए, करबल के मैदान में शहीद हो गए। अब मैं तुम्हें ये बताऊं, इमाम हुसैन की नमाज जनाजा कब हुई, इमाम हुसैन की नमाज जनाजा कब पढ़ी गई, इमाम हुसैन को कफन किसने दिया, इमाम हुसैन को दफन कहाँ किया गया, ताकि हमें पता चल जाए इमाम हुसैन के ताल्लुक से। पैदाइश तो मैंने बताई दी थी और शहादत की तारीख भी बता दी थी, लेकिन अब मैं पूरा ये बताता हूँ। 10 तारीख को इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इस जालिम यजीदियों ने लूट मार शुरू कर दी, खेमों में आग लगा दी, उन पाकीज़ा औरतों के दुपट्टों में आग लगा दी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पीछे को करके बांध दिए, हजरत सकीना के हाथ बांध दिए, हजरत ज़ैनब के हाथ बांध दिए। वो औरतें, वो सैयदादियां जिनके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते थे, लेकिन आज जालिमों को देखो, हजरत सकीना के बाली, कान में कुंडल यानी बाली थी, वो खींची, एक जालिम ने बाली खींचने से कान चिर जाता है। हजरत सकीना की आवाज निकली, उस जालिम यजीदी ने थप्पड़ मारा, हुसैन की बेटी के थप्पड़ लगा होगा, जमीन टहल गई होगी, आसमान हिल गया होगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में इमाम हुसैन का जिस्म पाक करबला के मैदान में है, सुन लेना। और यजीदियों ने नेज़े पर हुसैन के सरों को लेकर के 10 मुहर्रम को निकल जाते हैं। इमाम हुसैन की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं पढ़ी गई, किसी ने नहीं पढ़ी, ये यजीदी चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, जब करबला का मैदान खाली हो जाता है, बराबर में एक बस्ती रहा करती थी, एक बस्ती थी, वो बस्ती वाले जब आते हैं, इमाम हुसैन को तलवों को चूमते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो चले गए, हजरत अली असगर जो 6 महीने के बच्चे, इतना नूरानी खूबसूरत बच्चा, उनके कदमों को चूम करके लाके हुसैन की बराबर में रखा। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं को ला करके रखा। हजरत औनो मोहम्मद जो हजरत ज़ैनब के बेटे यानी इमाम हुसैन के भांजे थे, इनको इतने खूबसूरत थे, ला करके करबल के मैदान में रखा। ये 10 तारीख नहीं है, 11 मुहर्रम है, 11 मुहर्रम को ला करके रखा। सारे शहीदों को ला करके एक जगह रखा। उन बस्ती वालों ने हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, 11 मुहर्रम को हुसैन को कफन दूसरे कपड़ों का नहीं दिया गया, किसी शहीद को नहीं दिया गया, बल्कि उन्हीं कपड़ों में हुसैन का सर तो चला गया, जिसमें पाक को करबला के मैदान में दफन कर दिया। अल्लाह की यही मर्जी थी, इसलिए जब हश्र का मैदान हो, हुसैन उन्हीं कपड़ों के साथ आए, शुहादा उन्हीं कपड़ों के साथ आए, हक हक हो जाए, बातिल बातिल। मेरे भाइयों, ये हुसैन पाक हैं। अब 11 मुहर्रम को पता चला नमाज जनाजा कब पढ़ी गई, बोलो। 11 मुहर्रम को अब इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा हो गई। सरे पाक उन लोगों के साथ चल रहा है, वो सर देखो, हुसैन के लब हिल रहे हैं, हुसैन के होठ हिल रहे हैं। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। कुरान की यही आयत पढ़ी जा रही है, लेकिन वो जालिम यजीदियों को देखो। हुसैनियों सुन लो, वो जालिम यजीदी ढोल बजा बजा करके हुसैन के सर को कुदा कुदा करके नाच नाच करके ले जा रहे थे। हुसैनी नहीं बल्कि यजीदी ले जा रहे थे। हुसैनी तो बंधे पड़े थे और ये यजीदी ढोल बजा बजा करके ले जा रहे थे। एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी औरत थी, जिसके यहाँ पर कोई न औलाद थी, न बेटा था, न कोई कारोबार था, न कोई दौलत थी, न कोई रुपया पैसा था। बेचारी मांग मांग के गुजारा करती थी, उसके पास कोई दौलत नहीं थी, सूखी रोटी के चंद टुकड़े थे। उसे पता चला सैयदजादियां 3 दिन से भूखी है, हुसैन के बच्चे भूखे हैं। वो औरत आ जाती है, काफले में बूढ़ी औरत आ गई, सूखी हुई रोटी के टुकड़े अपनी मोहब्बत के साथ हजरत ज़ैनब की बारगाह में आ जाती है और कहती है, मैं बेटी मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो। हाँ, मैं हुसैन को जानती हूँ, मैं हुसैन को जानती हूँ, ये फातिमा का लाडला है, ये नबी का नवासा है। बेटी मेरे पास अगर दौलत होती तो आज दौलत कुर्बान कर देती, औलाद होती औलाद कुर्बान कर देती। मेरी माँ और बहनों सुन लो, आज
औलाद कुर्बान कर देती। वो बूढ़ी औरत बोली, कहा इधर हजरत ज़ैनब बोली, ए बूढ़ी माँ ये बता तू इमाम हुसैन को कैसे जानती है? कहा मत पूछो, मैं फातिमा के घर रहा करती थी, उनके बर्तन धोया करती थी। हुसैन जब छोटे थे मैं इनको गोद में खिलाया करती थी, मैंने इनका जमाना देखा है। और बेटी एक बात और सुन ले, अरे हुसैन की एक बहन है जिसका नाम ज़ैनब है, अगर उस बहन को पता चल गया मेरे भाई के सर को काट दिया है, अगर उसने दुपट्टा उठा के खुदा की कसम अगर दुआ कर दी तो सारे यजीदी हलाक हो जाएंगे, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, सारे यजीदी जमीन के अंदर धंस जाएंगे। उस बूढ़ी माँ को क्या पता था मैं ज़ैनब ही से बात कर रही हूँ, उसे क्या पता था ज़ैनब यही है। वो बोली, कहा बूढ़ी माँ तू ज़ैनब के बारे में कैसे जानती है? कहा मेरे सामने ज़ैनब पैदा हुई थी, और जब पैदा हुई 3 दिन की ज़ैनब थी, अल्लाह रसूलुल्लाह की बारगाह में जन्नत की हूरें आई थी। आने के बाद उन्होंने इल्तिजा की थी, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी की बेटी को हम चाहते ये हैं जन्नत में खिला लाए, अगर इजाजत हो तो खिला लाए। मेरे नबी ने इजाजत दे दी। 3 घंटे के लिए हजरत ज़ैनब जन्नत की सैर करके आई, हूरा ने जन्नत खिला के लाई। उधर से जब आई तो हरा कपड़ा दिया, मेरे नबी ने कपड़े को फाड़ के ज़ैनब की कलाइयों में बांध दिया था। उसका मर्तबा मत पूछो, उसके पांवों के नीचे नूरानी फरिश्ते पर बिछाते थे। जब कपड़े की बात सुनी, कहा कपड़ा बांध दिया था, हजरत ज़ैनब से रहा नहीं गया, आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी माँ को चिपट गई, और चिपटने के बाद कहती है, ले देख ले उसी सैयदजादी को, देख ले देख ले उसी ज़ैनब को, देख ले जिसको तूने बचपन में खिलाया था। आज यही वो ज़ैनब है जिसके हाथों में मेरे नाना ने कपड़ा बांधा था, उसके भाई के सर को काटा, उसके सामने काटा है, नेज़े पे टांग दिया, उसके सामने काटा है। तो बोल रही थी कि ज़ैनब ये कर देगी, आज मैं दुपट्टा नहीं उठाऊंगी, आज मैं दुआ नहीं करूंगी। ले देख ये हथकड़ियां उसी सैयदजादी के हाथ में है। इतना कहा, अगर मैं चाहूं तो जमीन को पलट सकती हूं, लेकिन मेरा भाई हुसैन इम्तिहान दे रहा है। आज हुसैन को, घर वालों को नहीं बचाना है, आज इस्लाम को बचाना है। जब इतना कहा, उस बूढ़ी औरत ने ज़ैनब को छोड़ दिया, कदमों को चूम लिया, और चूमने के बाद गुस्से में आ गई और शिमर के गले को चिपट गई और बोली, जालिम यजीदी कुत्ते, दौलत के लालची। अरे ये सैयदजादियां हैं, इनका बचपना मैंने देखा, नबी की कमली में सोती थी, फातिमा की गोद में रहा करती थी। अरे जालिम हथकड़ी खोल दे, अगर इसने हाथ उठा दिए तेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जालिम को रहम नहीं आया, उसने छुरी निकाली और उस बूढ़ी औरत के पेट में डाल दी। बूढ़ी औरत दुनिया से चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो है हुसैनी और ढोल बजाने वाले हैं यजीदी। अल्लाह अल्लाह। और आगे बढ़ो। अब जब इब्ने जियाद के यहाँ पर इमाम हुसैन का सरे पाक जब पहुंच जाता है, तश्त में सामने रखा हुआ है इमाम हुसैन पाक के साथ, इमाम हुसैन पाक का सर है तश्त में रखा हुआ है। इस इब्ने जियाद ने डंडा उठाया, उठाने के बाद हुसैन के होठों पे मारने लगा, हुसैन के गालों पे मारने लगा, हुसैन की पेशानी पे मारने लगा और कहने लगा, हुसैन अगर इन होठों से आज तुम यजीद की बैत कबूल कर लेते तो ये अंजाम नहीं होता। एक सहाबी रसूल मौजूद जिनका नाम ज़ैद बिन अरकम है, वो बूढ़े थे, खड़े हो गए, कहा जालिम डंडा हटा ले, मैंने नबी को चूमते हुए देखा है। यही हुसैन है जिनके लिए नबी ने सजदा लंबा कर दिया था, यही हुसैन है जिनके लिए नबी ने खुतबा रोक दिया था, यही हुसैन है जिनके लिए नबी नमाज से जाते हुए रुक गए थे। अपनी बेटी से बोले मत रुलाया करो, मुझे तकलीफ होती है। आज कितनी तकलीफ होती होगी। अरे जालिम तू कैसा कलमा पढ़ने वाला है, अरे होठों पे से डंडा हटा ले। लेकिन इब्ने जियाद ने हजरत ज़ैद बिन अरकम को धक्के मार के निकाल दिया
कि अगर बूढ़ा नहीं होता तो मैं कत्ल कर देता। अब भी इन जालिम यजीदी कुत्तों की नियत तो देखो। हजरत ज़ैनब भी खड़ी है, हजरत सकीना भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, फिर भी डंडा ये मार रहा है। हजरत सकीना से रहा नहीं गया। कौन सी बेटी ऐसी होगी जो बाप के कटे हुए सर पे डंडे बर्दाश्त कर लेगी। हजरत सकीना ने कहा, ए इब्ने ज़ियाद, या तो तू हमें पहले शहीद कर दे वरना हमसे नहीं देखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो सबर का प्याला छलक जाए, तेरी हलाकत शुरू हो जाए। इतना कहना था। इन यजीदी जालिम कुत्तों की नियत तो देखो। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएं बैठी हैं, मैं बंद जुमलों में बोलूंगा, पूरी बात समझ लेना, खुल के ये बात नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी बहनें बैठी हैं। वो जालिम यजीदी कुत्ता बोला, ए हाकिम, ए इब्ने ज़ियाद, लड़की बहुत खूबसूरत है, हुसैन की बेटी पे नजर गलत डाल रहा है, समझ गए होगे। कहा जवान है, मुझे 3 रातों के लिए लड़की मेरे हवाले कर दो। अब मैं इससे आगे जुमला नहीं बोलूंगा, पूरी बात समझ लेना। उस जालिम यजीदी कुत्ते ने क्या क्या बोला होगा, आप पढ़े लिखे हज़रात तो समझ गए होगे। इतना कहना था। इब्ने ज़ियाद खामोश है, जैसे ही वो बोलता है हजरत ज़ैनब बोल उठी, ऐ इब्ने ज़ियाद सुन ले, अभी तक इस्लाम बचाने की बारी थी तो ज़ैनब खामोश थी, लेकिन अभी इज्जत बचाने की बारी है। अभी हुसैन की बहन जिंदा है, अभी फातिमा का दूध, अली का खून अभी ज़ैनब की रगों में है। अगर जमीन पे पांव मार देगी, जमीन फाड़ देगी। इब्ने ज़ियाद होश में आ जा। लेकिन वो जालिम यजीदी फिर भी नहीं माना। उसकी नियत देखो, जैसे ही आगे बढ़ता है हुसैन की बेटी पीछे हटती है, हजरत ज़ैनब बीच में आ गई और जज्बात में आने के बाद बोली, ए जमीन तुझे मेरे नाना की कसम, ए जमीन तुझे मेरे फातिमा के सजदों की कसम, ए जमीन तुझे मेरे बाप अली की कसम, ए जमीन तुझे मेरी औलाद की कसम, ऐ जमीन अगर मैं अपने नाना की नवासी हूं तो आज फातिमा कहती है, ज़ैनब बोलती है, किसी और की बारी नहीं है। ज़ैनब बोलती है, ऐ जमीन फट जा और इस यजीदी को जिंदा निगल ले। तारीख उठाओ मुसलमानों, हजरत ज़ैनब ने अपना पांव मारा, कब वो जमीन फट गई और यजीदी को जिंदा निगल लिया। ये है सैयदों में पावर, ये है औलाद रसूल में पावर। घर की कहानी है तो कैसे सुनाई जाए। और आज मेरे भाइयों इतना बताओ, तुम ढोल बजा रहे हो, ताशे गाजे बाजे बजा रहे हो, मैं तुमसे सिर्फ बाद में भी बात करूंगा, लेकिन इस बात को पूरा कर दूं। इतना बताओ, अब जब वो जालिम यजीदी जमीन के अंदर धस जाता है, जैसे इस जमीन के अंदर धसा, अब सबके कान खड़े हो गए। इधर जो था इब्ने ज़ियाद ने हुसैन पाक के सरे पाक को यजीद के यहाँ पर रवाना कर दिया, दिमश्क रवाना कर दिया। अब सुनो ढोल बजाने वालों, अब सुनो अभी, लेकिन और बीच का थोड़ा सफर कराता हूं मैं तुम्हें। अब हुसैन के सर को लिए जा रहा है, सकीना के हाथ पीछे बंधे पड़े हैं, हुसैन की बेटी के हाथ पीछे बंधे पड़े हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बंधे हैं, हजरत ज़ैनब के हाथ बंधे हैं, इन लोगों के हाथ बंधे हैं। और ये लोग ढोल ताशे गाजे बाजों के साथ काफिला लिए जा रहे हैं। एक मकाम ऐसा आया, इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा यजीदियों से छूटा और छूटने के बाद जमीन में गड़ गया। यजीदियों ने ताकत लगा ली, नेज़ा नहीं उखड़ा। अरज़द पहलवान ने ताकत लगा ली, नेज़ा और इसके साथियों ने ताकत लगा ली, नेज़ा नहीं उखड़ा। 12 यजीदियों ने ताकत लगाई। मुख्तसर ये है
है। सारे यजीदियों ने ताकत लगाई लेकिन नेजा नहीं उखड़ा। उखड़ता कैसे? हुसैन का गड़ा हुआ नेजा था। ऊंटों से ताकत लगवाई, घोड़ों से ताकत लगवाई। अल्लाह अल्लाह। अब शिमर यजीदी जालिम को देखो, इसने घोड़ा निकाला और निकालने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हुजूर हजरत इमाम हुसैन के बेटे जो बीमार बेटे थे उन पर ये जालिम कोड़ा बरसाने लगा। इतने कोड़े मारे और कह रहा इमाम सज्जाद तू अपने बाप से कह नेजा उखाड़े वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कोड़े बरसा रहा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कभी इधर गिर जाते हैं कभी इधर गिर जाते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कोड़े खा रहे हैं और मुसलमान ढोल बजा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब भी देख रही हैं, हजरत सकीना भी, हजरत ज़ैनब भी देख रही हैं, शहरबानो उम्मे रुबाब भी देख रही है। इमाम हुसैन के सरे पाक से आंसू टपक टपक के नीचे गिर रहे हैं। अब जब जिस्म पर कोड़ों के निशान हो जाते हैं, अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन में कोड़ा खाने की सकत नहीं रही, ताकत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही, शुजाअत नहीं रही। उस जालिम ने कोड़ा मारा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकते हुए तड़पते हुए अपने अब्बा जान का नेजा पकड़ के बोले, अब्बा जान अपने सज्जाद बीमार की हालत देख रहे हो, मुझसे सैयदों की आल चलेगी, सैयदों की नस्ल चलेगी, सैयदजादे मुझसे पैदा होंगे और आज ये जालिम कोड़े बरसा रहे हैं। अब्बा जान नेजा उखाड़ लीजिए, अब्बा जान नेजा उखाड़ लीजिए। वो समा था। हजरत ज़ैनब रो रही है, हजरत शहरबानो रो रही है, उम्मे उबाब रो रही है। आज हमारे बेटे का इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने अब्बा जान के नेज़े को पकड़ के कहा, अब्बा जान नेज़ा उठाइए। अब तारीख उठाओ मुसलमानों, तारीख उठा करके देखो। हुसैन का सर कटा हुआ है लेकिन कटे हुए सर से आवाज आती है, बेटे सज्जाद, बेटे ज़ैनुल आबिदीन सुन ले, बेटे सुन, मेरी बेटी सकीना घोड़े से नीचे गिर गई है, वो पीछे रह गई है, वो मुझको पुकार रही है। पहले मेरी बेटी को ले आ, अपनी बहन को ले आ, नेजा उखड़ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, सकीना नहीं है। उम्मे रुबाब ने देखा, सकीना नहीं है। सारी की सारी दौड़ पड़ी। देखो हजरत सकीना के हाथ बंधे हैं, मुंह जमीन में लगा है, होठों में धूल लगी है। वो शहजादी, वो सैयदजादी इतनी खूबसूरत आज होठों पर धूल लगी है और पुकार रही है, अदरिकली या अभी, अदरिकली या वालिदी। ऐ मेरे बाप मेरी खबर लो, ऐ हुसैन मेरी खबर लो। जब इतना कहा तो ज़ैनब ने गोद में उठा लिया, सकीना को लाया, इमाम हुसैन का नेजा उखड़ा और ख्वाली के हाथ में आ जा। अल्लाह अल्लाह। अगर ऐसे ही मैं सुनाता चला जाऊं तो पूरी रात तो गुजर सकती है, लेकिन मेरे बाद एक खतीब और हैं, एक मुकर्रिर और हैं, उनको भी सुनना है। मैं तेजी से ये बता दूं, इमाम हुसैन का जिस्म पाक करबला में है, लेकिन सरे पाक कहां पर दफन किया गया है इतना और बता दूं। और ढोल वालों तुम ढोल की कहानी सुन लो, ढोल की इब्तिदा सुन लो, ढोल की तारीख सुन लो। अगर कोई भी इस तारीख को झुटला दे तो मेरे फोन नंबर तो होंगे ही, उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो इनको मुकम्मल हक है मुझे पकड़ लें ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह। दिमश्क शहर सजा दिया जाता है, बड़े बड़ी दूर तक डेकोरेशन है, बड़े बड़े चौराहों पर बड़े बड़े ढोल रख दिए जाते हैं। हर घर में एक रिवायत के मुताबिक शराब के 3 मटके भिजवा दिए जाते हैं, एक रिवायत के मुताबिक शराब के 7 मटके भिजा दिए जाते हैं। हर घर में यजीद ने हुक्म दे दिया है, ढोल बजाओ, शराबे पियो, खुशियां मनाओ, नबी के नवासे का सर मेरी बारगाह में आ रहा है, तोहफा
پیش ہونے آ رہا ہے. ارے ڈھول بجاؤ, اگر جس نے خوشیاں نہیں منائی اس کو کاٹ دیا جائے گا. اللہ اللہ, تاریخ دمشق اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا ایسا عالم تھا. میری بہنیں بیٹھی ہیں, اگر بیٹی نے شراب پی, بہن نے شراب پی, بیوی نے شراب پی, ماں نے شراب پی, بھائی نے, بیٹے نے, باپ نے, سب نے شراب پی, نشے کی حالت میں بیٹی کو پتا نہیں چلا میرا باپ کون سا ہے, بیوی کو پتا نہیں چلا میرا شوہر کون سا ہے. میرے جملے سمجھتے رہنا, اس سے بات آگے تک سمجھ لینا. اتنا گندا ناچ ناچا گیا, باپ بیٹی کے ساتھ گندا کام, بیٹی ماں بیٹے کے ساتھ گندا کام. اب تو پورا سمجھ گئے ہو گئے, بے حیائی عام ہو گئی ہے, شراب پی جا رہی ہے, ڈھول بجایا جا رہا ہے. یہاں تک لڑکیوں نے اپنے گریبان پھاڑ لیے تھے, ننگی ہو کر چوراہوں پر آ گئی تھی, چوراہوں پر عزت لوٹی جا رہی تھی, ڈھول بجا رہی تھی, شراب پی رہی تھی. ارے یہ حسینی نہیں تھے, یہ یزیدی تھے. ڈھول بجانے والوں آج سے توبہ کر لینا. حضرت سہل ایک صحابی رسول تجارت کے لیے گئے, انہیں پتا چلا نبی کے نواسے کا سر آ رہا ہے. باب السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کھڑے جیسے ہوئے امام حسین کا سر پاک آیا. رو رہے تھے, رو رہے تھے. سکینہ بولی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹی یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں. کہا میں تمہارے نانا کا غلام ہوں, میں صحابی رسول ہوں, اگر میرے لائق خدمت ہو بولو, میں جان قربان کر سکتا ہوں, حسین کے نام پر میرا سب کچھ قربان ہے. کہا ایسا کرو, یہ ڈھول بجا رہے ہیں, یہ تاشے گاجے باجے بجا رہے ہیں, ایسا کرو اگر ہو سکے تو میرے ابا جان کا نیزہ آگے کرا دو تاکہ یہ شراب پی پی کر ہم سے نہ ٹکرائیں, تاکہ ہمارے جسم سے ان کا جسم نہ ٹکرائے. اللہ اللہ, حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم دے کر کے امام حسین کے سر پاک کو آگے کرایا. وہ ظالم یزیدی کتے دولت کے لالچی تھے, انہوں نے حسین کے سر پاک کو آگے کر دیا. اب یہ سید زادیہ پیچھے چل رہی ہے, وہ ادھر کود رہے تھے, ڈھول بجا رہے تھے. اب جب بھی ان صحابی رسول سے نہیں رکا گیا, ان کے جوش میں ابال پیدا ہو گیا, ان کے خون میں ابال پیدا ہو گیا. انہوں نے ایک یزیدی کو پکڑا, اس کی تلوار چھین کے اسے کاٹ کے رکھ دیا, دوسرے کو کاٹ کے رکھ دیا. تاریخ بتاتی ہے حضرت سہل نے 8 لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا, اور 8 کے بعد یزیدیوں نے پلٹ کے سارے لوگوں نے حملہ کر دیا, یہ بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ ڈھول بجانا, اس کو محرم کو گھمانا, اس کے نیچے بچوں کو نکالنا, عورتیں گھڑے گھماتی ہیں, گھڑے, یہ گھڑے گھمانا یا اور بھی خرافات ہے, اس طریقے کی کرنا یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے. میرے بھائیو تم نے وعدہ کیا ہے ہم پکے سچے حسینی ہیں. اللہ اللہ, بس بات کو پورا کر دوں اور پھر میں اپنی گفتگو ختم کر لوں. امام حسین پاک کا سر یزید کے یہاں سے آ جاتا ہے, مدینہ پاک میں آ جاتا ہے, جنت البقیع میں امام حسین کی ماں جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, ان کی قبر مبارک حاجی لوگوں نے دیکھی ہوگی. ان کی قبر انور یعنی ان کے پہلو میں امام حسین کے سر پاک کو دفن کیا. اب پتا چل گیا نماز جنازہ 11 محرم کو ہوئی, آپ کا جسم پاک کربلا کے میدان میں ہے, آپ کا سر پاک جنت البقیع سیدہ فاطمہ کے پہلو میں ہے. یہ امام حسین کی کہانی میں نے بہت مختصر انداز میں سمیٹی ہے, چونکہ میری گھڑی میں 12:05 ہو گئے. میں بس تم کو ایک جملہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے میں دے کر کے جاتا ہوں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اگر اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں, اگر واقعی حسین کی محفل میں اگر ہم نے گناہوں سے اپنے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ضرور معاف کر دے گا. ایک بات بتا دو, بس آخری جملہ, ہمارے ماں باپ کا بھی تو انتقال ہوتا ہوگا, ہوا نہیں بولو؟ ان کا 10واں 20واں 30واں 40واں یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے ہمارے ماں باپ افضل ہیں یا نبی کے نواسے امام حسن حسین افضل ہیں؟ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے نا, نبی کے نواسے افضل.
تو میرے بھائی ذرا ٹھنڈے دماغ سے بتاؤ، میں تمہارا اسلامی رشتے کا بھائی ہوں، اتنا بتاؤ تم اپنے باپ کے تیجے میں ڈھول بجاتے ہو؟ 10ویں میں بجاتے ہو؟ 20ویں میں بجاتے ہو؟ 40ویں میں بجاتے ہو؟ برسی میں بجاتے ہو؟ اگر یہ اچھا کام ہے تو پھر بجاتے کیوں نہیں؟ تو پھر امام حسین ہی چھٹے تھے کیا تم؟ خود سوچو ٹھنڈے دماغ سے۔ ہمارے ماں باپ کا انتقال و قرآن خوانی کراتے ہیں، چنے پڑھواتے ہیں، کلمہ و کلام پڑھواتے ہیں، محفل میلاد ہوتی ہے، یہ تمہارا ذکر اور یہ جلسہ کرنا طبیعت خوش ہو گئی ہے، سمجھے؟ پروگرام کراتے ہو، علماء کو بلاتے ہو، یہ سب کام کرتے ہو، اور جب نبی کے نواسوں کی باری آتی ہے تو تم ڈھول نکال کے لے آتے ہو۔ میں تو جب بہادر سمجھوں گا کہ کوئی ایسا مائی کا لال ہو جو اپنی ماں کی برسی پہ ڈھول بجائے، اس سے اور کررا میری بات یہ تمہیں کرری لگے گی، بری بھی لگے گی، لیکن اسلامی رشتہ کا تمہارا بھائی ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے تک کڑا جملہ بول رہا ہوں تاکہ اچھے سے ذہن میں آ جائے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے اس میں نہیں بجاتے ہیں تو امام حسین پاک کو اس میں بجاؤ گے؟ امام حسین پاک راضی ہوں گے؟ نبی راضی ہوں گے کیا؟ سارے کا سارا کرا دھرا رہ جائے گا۔ بس میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کرو، استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔